Good morning and welcome back again, my dear students. This is Gladson sir. Again, we are going to start our chapter. Last day, what we have read or studied. आप सबों को फिर से हम ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं. मेरा नाम ग्लैडसन है, आप सबको ही जानते हैं. आज मैं फिर से वही चैप्टर जो मैंने पिछले दिन आपको पढ़ाया था उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा. टुडे बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ और next part of the story, I would like to come back the previous point what we have learned by last week on Saturday. What was that story? His brother Tom has a source of creating trouble to his elder brother, and lastly what happened? He left his job, he left his wife, he left his children, and he went to spend his life as he wishes. Lastly, what the amount he had with him, he expensed everything, and finally their relatives were asking to him what will happen when all the money will be spent. This was the story, and today we are going to continue the next point. पिछले दिन देख रहे थे कि ये टॉम जो है जॉर्ज का बड़ा भाई छोटा भाई, वो क्या करता था कि अपने बड़े भाई के लिए जॉर्ज के लिए वो क्या करता, बहुत सारा परेशानी या मतलब ऐसा एक स्रोत बन गया था कि उसके जीवन में हमेशा परेशानियों को लाता रहता था. क्या होता है कि वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने नौकरी को छोड़ देता है और सब कुछ छोड़ने के बाद घर से निकलता है और जो पैसे उसके पास थे वो सब कुछ लेकर वहाँ से विदा हो जाता है. और वो उसके अपने लोग, उसके रिलेटिव्स लोग ये पूछते हैं कि भाई इसका जो पैसा है, जब तक ये पैसा है तब तक ठीक है, जब ये पैसा ख़त्म हो जाए तब ये क्या करेगा. ये थी जो कहानी हमने पिछले सैटरडे को हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. दे सून फाउंड आउट ही बोरोड, ही पोसेस्ड ए वेरी charming personality. No one could refuse a loan to him. He had a steady income from his friends and he made friends easily. अब यहाँ देखिए, here we are saying that there was a situation in his life that he has to borrow some money or he has to go through some situations, and one more thing was there. Due to his charming personality, no one was ready to give him any kind of loan. Why? Because he was not having any steady income from his friend's side or his side to return those loans. कहने का मतलब है कि कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि ये लोगों से उधार लेता है, कर्ज लेता है और उसकी ऐसी या फिर लोगों के अधीन होकर के उसके काम को करता है. लेकिन एक बात ये भी था कि इसका ऐसी आकर्षक पर्सनालिटी हो गई थी कि कोई भी मतलब इसको इनकार कर देता था लोन देने से. क्यों? क्योंकि इसके दोस्तों की तरफ से या इसके पास से मतलब नियमित तौर से न पैसा कमाने का, मान लो कि हम उधार लेते हैं, अगर मेरे पास पैसा कमाने का स्रोत ना हो, अगर हम उसका उधार नहीं चुका पाते हैं या नहीं चुका पाएंगे तो हम उधार क्यों लेंगे भाई, कोई तुमको क्यों उधार देगा. और कहता है कि इसकी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत थी कि लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता था और दोस्त बना लेता था. बट जॉर्ज कमांडेड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. वंस और ट्वाइस ही फेल टू टॉम्स प्रॉमिस ऑफ अमेंडमेंट एंड गेव हिम good sum of money so that he might make a fresh start. But Tom spent that amount on costly garments, a motor car, and some very nice jewelry for himself. Now we are seeing that, but his elder brother was there, his George. He used to come get the respect, or he has made himself as a respected person in his society. So once or twice his elder brother made him to fall down or go away from his promises. Why? Because for the amendment of his life. What we are saying that his elder brother used to give some amount of money that he thinks that one day will come that he will become good boy or a good person, he will go and earn money. But whatever the money was spent
from his elder brother to his younger one, what does he do? He used to take that money, go to the market. He spent all those monies for purchasing the jewelries, motorbikes, motor cars, and etc. for himself, or any beautiful garments. This was the thing which was done by his younger brother. और इसका बड़ा भाई जो जॉर्ज था वो अपने आदेश मतलब लोगों के बीच में या समाज में अपने आप को इस प्रकार का बना लिया था कि वो सबके सामने एक इज़्ज़तदार व्यक्ति था। और उसका छोटा भाई जो था एक दो बार मतलब एक आध बार उसको अपने जो होता है ना, हम एक कसम खाते हैं, हम एक वादा करते हैं अपने बड़े से कि हम अब गलत रास्ता नहीं करेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही उसका छोटा भाई भी उसको कई बार ऐसा मतलब वादा किया कि अब हम सुधर जाएंगे, लेकिन उसमें कोई ऐसा सुधार नहीं आ पाता था। कारण क्या था? क्योंकि वो क्यों सुधारना चाहता था? ताकि उसकी अवस्था बदल जाए, वो गरीबी में ना जाए या लोगों के पास उसको भीख मांगना ना पड़े। इसलिए वो बड़ा भाई उसको क्या करता था, उसको कुछ पैसे दिया करता था कि जाओ कम से कम अब तो तुम अपना ज़िंदगी सुधार लो, अब अपनी एक ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले आओ। ये करके क्या करता था, उसका भाई उसको मदद करता था। लेकिन ये क्या करता था, इतना नालायक था, अपने बड़े भाई की बातों की अवहेलना करते हुए, उसको इनकार करते हुए जो पैसे उसको प्रदान किया जाता था वो पैसों को लेकर के वो क्या करता था, जाता था और वस्त्र खरीदता था और या फिर गाड़ियाँ खरीदता था या फिर अपने लिए गहने खरीदता था, सोना चांदी का गहना खरीद लेता था। इस तरह से वो पैसों को उड़ा दिया करता था। When George came to know that his brother would never settle down, he washed his hands of him. But then Tom started to blackmail his elder brother. He started driving a taxi or serving in a restaurant. George, who was a respectable lawyer, felt ashamed to see his brother doing such mean job. He would complain in a painful manner. Now, what is happening in the next part in this life? His elder brother was very worst. He was not worst, he was a respectable person, and not only respectable, he was a honorable, a respectable lawyer also. Now his younger one is starting to blackmail his elder brother. How he is blackmailing? As his activities, his elder one, it means George, came to know that he is not going to settle down ever, and he washed out his hands from his back. And at that time, his brother started to blackmail him. How he is blackmailing? He started to drive a taxi. He started to work in a restaurant as a servant, and started to do unnecessary work because he wanted to blackmail his brother and to get some money from him. For that, he was doing this, and it was very ashamed thing to see his brother is doing such a mean job, cheap job. Okay, so it was not good, and it is a complaint for himself that his brother is doing such a painful manner work, isn't it? तो यहाँ देख रहे हैं कि जॉर्ज जो है अपने भाई की अवस्था को देखने के बाद वो इस बात से अच्छी तरह से समझ गया था कि ये अब कभी इसके जीवन में सुधार होने वाला नहीं है, कभी अपने आप को संभालेगा नहीं, अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। और इसकी वजह से ये बड़ा भाई क्या किया, अपने छोटे भाई के ज़िंदगी से अपने हाथ को धो के साइड हो गया। ओह, अभी इसके लाइफ के पीछे हमको पड़ना नहीं है, इसके पीछे अगर हम रहेंगे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। अपना हाथ धो के साइड हो जाता है। तो क्या होता है कि इसका छोटा भाई जो है अब अपने बड़े भाई को ब्लैकमेल करने लगता है। ब्लैकमेल करने का मतलब होता है भयादोहन मतलब कि दूसरों को इस बात का लालच देने मतलब करने लगता है कि अगर तुम मुझे ऐसा पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारा ऐसा करेंगे, अगर तुम हमको अच्छा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे लिए ये बुरा करेंगे। तो होता है ना, ब्लैकमेल करते हैं। दिस वाज द वो इस तरह से अपने बड़े भाई के साथ करने लगा। तो क्या ब्लैकमेल करने लगा कि वो होटलों में जाकर के नौकर का काम करने लगा, कहीं जाकर के टैक्सी चलाने लगा, कहीं कुछ मतलब एक ऐसी नीच हरकतें करने लगा जिसके वजह से उसके बड़े भाई को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा भाई जो है बहुत ही एक आदरणीय और एक बहुत ही जाना माना वकील है। और एक सोचो, एक वकील का भाई अगर इस तरह की हरकतें करेगा, इस तरह का नीच काम करेगा, इतना गंदा काम करेगा, तो सोचो उसको कितना बेइज्जती महसूस होगा।
तो इस तरह का एक ऐसा मतलब इस तरह का हालात उसके जीवन में आ गया जिसकी वजह से वो अपनी शिकायत कहीं कर भी नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इतनी दर्दनाक दशा में ये पड़ा हुआ है। Why does not he give a few £100 if he thinks it below family honor? Tom would say George paid him money. यहाँ क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यदि इसको 500 रुपये का $1 दे दोगे या 500 रुपये पाउंड दे दोगे, कहने का मतलब एक 500 रुपये का नोट अगर उसको दे दोगे तो शायद ये तुम्हारे लिए अपने परिवार के सम्मान से बड़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर ये 500 रुपये के लिए अगर इस तरह का हरकत करता है तो 500 रुपया दो और इससे पीछा छोड़ाओ, लोग ये कहने लगे। तो ये टॉम ने क्या किया, बड़ा भाई ने क्या किया कि अपने छोटे भाई को जा करके वो 500 रुपया उसको दे देता है। वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन। He had cheated a man named Cronshaw. He was determined to go to the court. If Tom were persecuted, he would assuredly be convicted. George was terribly upset. After a great deal of trouble, he gave the man a check of £500 and settled the matter. Now, another one great matter is coming. Another great trouble is coming to George's life. What is that? One day, his younger one went to jail. Why? Because he has cheated a person whose name was Cronshaw, and he was determined to be taken to the court. And if he would be present in the front of court, he will be punished and he will be put it in the jail, or he will be treated as a prisoner, as a what we say, एक अपराधी की तरह वो वहाँ पर as a convict he will be treated. So it was a great problem for his younger brother. Why he has done such a great thing, such a great mistake. So to settle down this matter, his elder brother took a 500 rupees check and given to that man to settle this matter, not to be taken to the court. अब देखिए, ये बड़ा भाई के जीवन में एक और भूचाल आया। क्या भूचाल आया भाई? ये छोटा भाई जो है फिर से एक ऐसा काम किया जिससे इसको लोग थाने वाले या पुलिस, वहाँ के पुलिस कर्मचारी जो हैं इसको पकड़ करके थाने ले जाते, जेल में डाल देते। क्यों भाई? जेल में डालने का पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वो एक व्यक्ति जिसका नाम क्रॉन्शो है उसको धोखा दिया था। उसको धोखा देने के चलते ये मुसीबत में पड़ गया। उस व्यक्ति ने जाकर के उसको मतलब थाने में जाकर शिकायत कर दिया कि यह व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, और उसका कहना है कि अगर इसको मतलब थाने से ये आदेश आया कि अब इसको अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाए ताकि इसका मुकदमा लड़ेगा और इस पर केस होगा। अगर ये गुनाहगार होगा तो इसको मतलब सज़ा मिलेगी। तो इसके बड़े भाई ने इस सारी बात को जानते हुए कहा कि यदि ये लड़का कचहरी में यानी कोर्ट में गया तो ये पक्का ये बात साबित हो जाएगा कि ये अपराधी है। क्यों? क्योंकि इसने धोखा दिया है। तो इस बात को दबाने के लिए उसके बड़े भाई ने, जॉर्ज ने क्या किया, उस व्यक्ति को एक 500 रुपये का चेक देता है और कहता है कि इस बात को, इस घटना को यहीं पर रफा दफा करो ताकि ये मामला आगे ना बढ़े और इसे कोर्ट कचहरी न जाना पड़े। समझ में आ रहा है? तो सी हाउ ए elder brother is doing good thing for his younger one, but younger one is, even though he is not any bit of responsible for his goodness. और इसके बड़ा भाई जो है ये जॉर्ज जो है उसके लिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहा है, लेकिन ये छोटा भाई एक रत्ती भर का भी उसके अंदर एक अच्छाई नहीं झलक रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। सो दिस वॉज द स्टोरी वॉट वी हैव लर्न टुडे। Up to here I am stopping today. If you have any doubt, any question, you can ask to me and I will be helping you. Till that, go to the chapter, read it well properly, find out the hard word, write their meaning and learn it. Okay? So we will be seeing you in the next class by tomorrow. Thank you. May God bless you all. Have a nice day.